वो बाद में फीड करेंगे, चलो कोई बात नहीं। Now we'll be starting your rudder and propeller. So first we'll be doing your action of rudder, how the rudder steers your ship. So I'll show you the diagram to understand, and then we come to the PPT. This diagram I had drawn for section B, so I'll explain this diagram to you. So when you're moving ahead and your rudder is amidships, this is this diagram. So when you're moving ahead and rudder is amidships, then the flow of water will be coming from both sides equally, and because of the hydrodynamics, the vessel will move straight, no effect. Now suppose you move your tiller, if it is a boat, to starboard, so your rudder will move to port, or if you give a helm to port, your rudder is going to move to port. So when the rudder is moving to port, how does a vessel swing to port? Let me explain with hydrodynamics. Now because of the movement of your rudder to port, the flow of water on the starboard side will be faster because this is a clear area. So we'll have more area to cover, so we'll move fast here. Now, as per Bernoulli's principle, P into V is constant. That you've studied in school. That is class 12th, you've studied that. PV is constant. So when your V is increasing here because of the movement of rudder, P or pressure will be less in this region. So this region will have less pressure. This region, what happens in the port side, the flow of water will be hindered here. Hindered because the movement, the rudder has moved this side, so there's a restriction in flow of water. So when the restriction in flow of water is there, the velocity in this region on port side is reduced. So when the velocity is reduced on port side, the pressure on this side is going to increase. So when the pressure is going to increase, this is going to act on your rudder, and because of the rudder is attached to your stern, so it becomes a pivot point and will turn this to port. Now for the starboard side. So if your rudder is moved to starboard, so your tiller will move to port. If it is your live boat or any rowing boat, you move the tiller to port, your starboard, your rudder will move to starboard. So when your rudder moves to starboard, the starboard side will have resistance, port side will have no resistance, the velocity will increase, pressure will decrease here, velocity decreases, pressure increases here, it will act here. This being a pivot point will turn to starboard. So this is the action of rudder in moving when you're moving forward. Have you understood this action? Any questions on this action? सर एक बार सर फिर से बता दीजिए सर। अब मैं हिंदी में समझाता हूँ, एक बार इंग्लिश में समझा, अब हिंदी में समझाता हूँ, क्योंकि अगर समझ नहीं आए इंग्लिश में तो फिर मुझे हिंदी समझानी पड़ेगी। अब हिंदी में समझाता हूँ। रडर मिडशिप्स में है, पानी दोनों तरफ इक्वल जा रहा है, कोई प्रॉब्लम नहीं। रडर पोर्ट में आया, स्टारबोर्ड साइड का एरिया क्लियर हो गया, वेलोसिटी ज्यादा हो गई इस तरफ, क्योंकि ये क्लियर है तो वेलोसिटी ज्यादा होगी, तो प्रेशर यहाँ कम है। पोर्ट साइड में क्या है, रेजिस्टेंस हो गया, क्यों? क्योंकि रडर पोर्ट साइड आ गया तो यहाँ रुकावट हुई, रुकावट के लिए खेद हो गया। जब रुकावट के लिए खेद है तो वेलोसिटी कम हो गई, प्रेशर ज्यादा हुआ, यहाँ
यहाँ इसने धक्का मारा, यहाँ अटैच्ड है, अगर कुछ चीज अटैच्ड है तो उसी तरफ घूमेगी, आपने ये देखा हुआ है। अगर इसको घुमाओगे और ये यहाँ लगा हुआ है तो ये इस तरफ नहीं जाएगा, वो इसी तरफ आएगा, तो इसी तरफ घूम रहा है फोर्ट साइड। स्टारबोर्ड साइड वाला देखो, स्टारबोर्ड में आपने मूव किया तो क्या हो गया, इधर में क्लियर हो गया रास्ता। जब क्लियर रास्ता हो गया तेजी से पानी आएगा, वेलोसिटी बढ़ गई, प्रेशर कम हो गया। इस तरफ क्या हुआ, स्टारबोर्ड साइड में रुकावट हो गई, तो यहाँ वेलोसिटी कम होगी तो प्रेशर बढ़ गया, इसने यहाँ धक्का मारा, यहाँ अटैच है, स्टारबोर्ड में गया। आया समझ? अब समझ आ गया? हाँ जी सर, हाँ। हाँ, तो मुझे इंग्लिश और हिंदी दोनों बोलना पड़ेगा, नहीं तो समझ नहीं आ रहा। इंग्लिश में कुछ लोगों को समझ नहीं आता, हिंदी में कुछ लोगों को समझ नहीं आता। सो आई विल यूज बोथ लैंग्वेज टू एक्सप्लेन, बिकॉज दिस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट इन शिप हैंडलिंग। शिप हैंडलिंग आपको एनसीटी साहब समझाते हैं, लेकिन फिर भी यू शुड अंडरस्टैंड दिस, बिकॉज ये काफी चीजें ओरल में, बीटीएम में कई कई जगह यूज होती हैं। सो यू हैव टू अंडरस्टैंड द एक्शन ऑफ रडार। अब एक और आपको क्वेश्चन पूछते हैं, आपको एक क्वेश्चन पूछें फिर मैं समझाऊंगा। अस्टर्न जब जाते हैं तो रडर को मिडशिप्स क्यों रखते हैं, कोई बता सकता? अस्टर्न जब हम जाते हैं क्योंकि वो तो रडर को हाँ, क्या होता है, बोलो बोलो बोलो, घबराओ प्रोपेलर जो नहीं, होता जो है वो भी रडर पे है, क्योंकि मैं आपको समझाऊंगा इसके बाद, पहले आपसे पूछूं कि आपको सर कितना आता है। प्रोपेलर रडर वाले एरिया में सक्शन बना लेता है, तो अच्छा, वो नहीं तो रडर हिंदी में को समझाओ, सक्शन सक्शन छोड़ दो, ये सक्शन और प्रेशर साइड छोड़ दो, अंग्रेजी वर्ड छोड़ दो, हिंदी में समझाओ क्यों मिडशिप होता है। मुझे हाँ सर सक्शन और प्रेशर साइड छोड़ दो। इंटरेस्ट ना है सर इसलिए। हाँ सर क्या हो वो गया, पानी खींचता है। पानी सक्शन करता है, इसलिए ये मिडशिप सर रखते हैं। रडर के हाँ सर, ताकि पानी आराम से आ सके। पानी आराम से आ सके, कहाँ पानी आराम से आ सके, वहां तो प्रोपेलर चल, आप किधर मूव कर रहे हैं स्टर्न में, पीछे की तरफ जा रहे हैं ना, हाँ कि आगे की सर, तरफ जा तो रहे हैं? प्रोपेलर पानी पीछे का से भाव आगे खींचेगा या ना पीछे? सर। प्रोपेलर खींचेगा। प्रोपेलर तो पीछे से खींचेगा ना पानी। हाँ, तो पीछे से खींचेगा कि धक्का कहाँ मारेगा पानी को? सर जहाज के नीचे फेंकेगा। नीचे फेंकेगा। ये सही है, जहाज के नीचे फेंकेगा। ये बहुत सही फंडा मारा है बेटा, बहुत अच्छा फंडा, गुड फंडा। ओरल में ऐसे फंडे दोगे तो उड़ जाओगे हैं। ओरल में अगर ऐसा फंडा दोगे ना, अंडा और डंडा दोनों मिलेगा, ठीक है। और ये ज्यादा सक्शन और प्रेशर डालोगे ना, खुद पे प्रेशर आ जाएगा। जरा अपना क्लैरिटी रखो दिमाग में, देखो पहले मैं समझा रहा हूँ, बहुत आराम से सोचो, कोई इसमें टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। आप लोग क्या करते हो, रट्टा वट्टा मार लेते हो, सक्शन साइड, प्रेशर साइड, और फिर वहां क्या आपके दिमाग में प्रेशर हो जाता है और फिर गड़बड़ हो जाती है। तो ये जब है ना, ये टर्मिनोलॉजी तो भूल जाओ, ये बाद में लेना जब समझ आ जाए। अभी आधी कच्ची बातों को आप लोग रट्टा मार लेते हो और फिर वहीं प्रॉब्लम हो जाती है। चलो मैं समझाता हूँ, आप लोग क्या मास्टर लोग भी नहीं जवाब दे पाते, तो इसलिए घबराओ नहीं। सर वो पिवट मैंने पॉइंट आगे शिफ्ट हो जाता है ना, तो रडर का इफेक्ट नहीं रहता। पिवट पॉइंट का इससे मतलब नहीं है, इसका कोई पिवट पॉइंट से मतलब नहीं है। अब मैं समझाता हूँ क्यों, यही मैंने समझाया था, और ये मैंने एएसएम को भी पूछा था, उनको समझ नहीं आया था क्या होता है, क्यों होता है। सो आप लोग ये नहीं सोचो कि आप लोगों को नहीं समझ आया तो आप लोगों को गड़बड़ हो गई, मास्टर लेवल को भी समझ नहीं आता, ठीक है। तो आप लोगों को समझा दूंगा, अब आप मास्टर लेवल को समझा देना, ठीक है। अब अच्छी अच्छी तरह सुनो बेटा, इसमें रट्टा मारने की जरूरत नहीं है, मेरी क्लास ध्यान से सुनो, नहीं तो प्रॉब्लम हो जाएगी बाद में आपको, ठीक है। रट्टा मार लोगे एग्जाम पास हो जाएगा, बाद में आपको मुश्किल होगी जब समझ नहीं आएगा। अब ये देखो, रडर आपका मिडशिप्स में है, जब अस्टर्न जा रहा है, पानी का भाव बराबर जा रहा है, कोई प्रॉब्लम नहीं। लेकिन अगर हमने इसको पोर्ट साइड घुमाया तो क्या प्रॉब्लम होगी? आप सोचोगे कि यहाँ बर्नौलीज प्रिंसिपल से इफेक्ट आएगा, तो आप पोर्ट टाइप टर्न करोगे या स्टारबोर्ड टर्न करो, नहीं होगा। क्यों? क्योंकि ये जो पानी का मूवमेंट होगा, उसमें जो एरिया, जो जो डिस्टेंस कवर करेगा पानी, क्योंकि अगर रडर इधर होता फॉरवर्ड में और अब फिर आप स्टर्न मूवमेंट कर रहे होते, तब रडर इधर को इधर उधर करते, तब मूवमेंट ठीक रहता, अब ज्यादा होता, लेकिन फॉरवर्ड में तो लगाते ही नहीं है। इसके बाद मैं आपको क्वेश्चन पूछूंगा, फॉरवर्ड में क्यों नहीं रडर लगाते?
तो अगर आप अस्टर्न जा रहे हो, अगर आपने इसको पोर्ट में घुमाया तो क्या हुआ, आपका ये पानी जब इधर से गया थोड़ा सा बर्नौलीज इफेक्ट आएगा, लेकिन वो इतना नहीं है कि इस जहाज को टर्न करे पोर्ट या स्टारबोर्ड। अब ये स्टारबोर्ड टर्न करता है राइट हैंडेड प्रोपेलर का और लेफ्ट हैंडेड प्रोपेलर का, जब अस्टर्न जाओ तो पोर्ट जाता है बिकॉज ऑफ अनदर मोशन जो मैं बाद में बताऊंगा। वो आपके स्क्यू के कारण है, डायरेक्शन ऑफ मोशन के कारण आपका थ्रस्ट कैसे लगता है, उसी के कारण आप पोर्ट या स्टारबोर्ड जाते हो डिपेंडिंग ऑन द टाइप ऑफ रडर। राइट हैंडेड प्रोपेलर व्हेन यू गो astern will go turn to starboard, left hand propeller will turn to port, there is no action of rudder in that। अब रडर को अगर हमने पोर्ट में घुमाया तो क्या होगा, रडर के ऊपर प्रेशर आएगा, इस पॉइंट पे प्रेशर आ रहा है। सेकंड, जब आपका पानी का बहाव जा रहा है तो यह रडर उसको रोकेगा एक तरफ से, तो जब रोकेगा तो आपकी स्टर्न मूवमेंट जो है, क्योंकि आप पानी इस तरफ जाएगा, आप आओगे उल्टी डायरेक्शन में ना, आप इस डायरेक्शन में आओगे, तो उसको ये रोकेगा वापस आने में। तो आपकी ये एक तो स्पीड हिंड्रेंस करेगी स्टर्न आने में, इस पे प्रेशर आ रहा है, और तीसरा इसका बर्नौलीज इफेक्ट नहीं आएगा। सिमिलरली फॉर स्टारबोर्ड में भी अगर हम करेंगे तब भी वो इफेक्ट नहीं आएगा, इसलिए हम उसको मिडशिप्स करते हैं, नहीं तो ये रुकावट दे रहा है हमको पीछे आने में। ठीक है, सर अब हम आपको बर्नौलीज एक और इफेक्ट क्यों नहीं आएगा? बिकॉज यहाँ जो डिस्टेंस है रडर कितना बड़ा है बर्नौलीज इफेक्ट के लिए, पानी का बहाव के लिए कितना बड़ा रडर है, कितना मतलब चौड़ा होगा, 2 मीटर होगा, 3 मीटर होगा, तो जब 2-3 मीटर पानी बहाव देगा उसका इफेक्ट ही नहीं आएगा ना। ये तो आपका लेंथ जहाज है, पानी का इतना मूवमेंट आ रहा था आगे से पीछे तक, तो स्पीड डिफरेंस आ रही थी दोनों तरफ कंसिडरेबल चेंज होने में, क्योंकि बहाव ज्यादा होता है। लेकिन अगर बहाव कम है तो इसमें दोनों में डिस्टेंस ज्यादा नहीं है इसको कवर करने में, सो द बर्नौलीज प्रिंसिपल इफेक्ट विल नॉट बी मच, इट विल बी नेग्लिजिबल, दैट विल नॉट बी टू टोटली मोर टू गिव एन इफेक्ट। अब मैं वापस दूसरे डायग्राम पे आता हूँ, रडर एक्शन पे, और उसमें आपको समझाता हूँ कि रडर हमारा आगे क्यों नहीं होता, पीछे ही क्यों होता है। ये भी आप आपसे क्वेश्चन पूछते हैं। चलो वापस इस डायग्राम पे आते हैं। द फर्स्ट डायग्राम विच आई हैड टेकन, उस पे आते हैं कि वाई रडर शुड बी फॉरवर्ड, तो फॉरवर्ड होना चाहिए आपके बजाय, फॉरवर्ड क्यों नहीं है। एक मिनट मुझे लगाने दो। यही चीज है जब हम अस्टर्न में मिडशिप क्यों रखते हैं, वही रीजन है फॉरवर्ड क्यों नहीं रडर है, आफ्ट में क्यों है। कमिंग बैक टू दिस डायग्राम, हमने रडर को आफ्ट लगाया, फॉरवर्ड क्यों नहीं लगाया, इधर लगा देते, इधर लगा देते है ना, हमने पीछे क्यों लगाया। चलो ओरल का क्वेश्चन है, हमने रडर पीछे क्यों लगाया है, 3-4 रीजन हैं पीछे लगाने के, बताओ भाई, आगे क्यों नहीं लगा दिया। सर आगे बर्नौली लगा, इफेक्ट ज्यादा होगा ना। हाँ एक बर्नौलीज इफेक्ट ज्यादा है, सेकंड प्रोपेलर आपका पीछे है, तो अगर फॉरवर्ड रहेगा तो बहाव प्रोपेलर भी धक्का मारेगा ना, एक तो आगे से पानी आएगा और पीछे से भी पानी आएगा, तो प्रोपेलर का जो मूवमेंट होगा वो थोड़ा इफेक्ट देगा, और ये बाकी ये इफेक्ट देगा, क्योंकि आप थोड़ा मूव करोगे तो पानी और आगे से आएगा। तो 2 इफेक्ट हो गए। तीसरा क्या है कि अगर आगे रडर होगा तो आगे से किसी को टच कर रडर ही टूट जाएगा। तो 3 रीजन है कि आगे क्यों नहीं रडर होता। एक तो अगर आगे होगा तो इफेक्ट नहीं होगा ज्यादा, दूसरा रीजन क्योंकि प्रोपेलर आपका पीछे है इसलिए वो पीछे रहेगा। तो प्रोपेलर के आगे, प्रोपेलर के पीछे क्यों नहीं है, क्योंकि प्रोपेलर आगे है रडर के, क्योंकि प्रोपेलर भी पानी को पुश करेगा, आगे से भी पानी आ रहा है और यहाँ से भी पानी आ रहा है, तो 2 इफेक्ट उसको ज्यादा कारगर होंगे। तीसरा रीजन अगर आगे रहेगा तो वो डैमेज हो जाएगा। तो 3 रीजन है कि रडर हमारा आगे क्यों नहीं रहता और पीछे ही क्यों रहता है और प्रोपेलर के पीछे ही क्यों रहता है, ये 3 रीजन है। ठीक है, अब पीपीटी वापस शुरू करते हैं। तो आपको इस तरह समझा दिया है, सो विल स्टार्ट बैक ऑन योर एक्शन ऑफ रडर। क्योंकि एक अगर मैं पीपीटी से पढ़ाऊं सो यू आर नॉट गोइंग टू अंडरस्टैंड इट फुल्ली, इसलिए थोड़ा सा मुझे अलग तरीके से पढ़ाना पड़ता है इन दिस। नाउ रडर अगर आप देखो, रडर आपका हॉलो होता है। ठीक है, रडर इज नॉट सॉलिड, इट इज हॉलो। व्हाई इट इज हॉलो, बिकॉज अगर सॉलिड होगा उसके लिए स्टीयरिंग गियर बहुत बड़ा चाहिए, एंड दूसरा हमारे इस शिप का लाइट वेट भी बढ़ जाएगा और पैसा भी ज़्यादा लगेगा। तो 3 रीज़न है कि हमारा हॉलो क्यों होता है।
मनूवरेबिलिटी में इफेक्ट आएगा, क्योंकि एक तरफ से दूसरी तरफ जाने में ज्यादा टाइम लगेगा, सॉलिड होता है। तो इसका ऐसा ये हाइड्रोडायनेमिक्स होता है कि पीछे से टेपर हो जाता है मछली के टेल के जैसे, सो दैट इस पे स्पीड इफेक्ट ज्यादा होगा, एक्सेलरेशन ऑफ वाटर विल बी मोर। अगर वो फ्लैट ऐसे होता तो वाटर एक्सेलरेशन ज्यादा नहीं होता। अब क्या है, एक्सेलरेशन ऑफ वाटर ज्यादा हो रहा है, तो इफेक्ट विल बी faster and better. Bernoulli's effect will act more in this kind of rudder. ये वाले आपको एक्शन तो दिखा दिया था, एक्शन ऑफ रडर इन स्टीयरिंग शिप पोर्ट और स्टारबोर्ड में कैसे घूमता है, जैसे आई ऑलरेडी एक्सप्लेन्ड। इसमें एक तीसरा डायग्राम है जहां आपका ड्रिफ्ट एंगल होता है बिकॉज ऑफ इनर्शियल बॉव फोर्स एंड इनर्शियल फोर्स एट स्टर्न। तो अब सेंटर ऑफ ग्रेविटी यहाँ है, स्वे वेलोसिटी है, रडर स्टारबोर्ड किया, तो थोड़ा आपका जो आगे से है वो आपको स्टारबोर्ड ड्रिफ्ट हो रहा है बिकॉज आपका रडर स्टारबोर्ड है, तो ये ड्रिफ्ट एंगल बन जाता है। तो इतना ज्यादा आपको समझने की जरूरत नहीं है। ये वाले जो डायग्राम है ये शिप हैंडलिंग सीनियर लेवल पे ज्यादा होता है, आप लोगों के लिए ये लेवल नहीं है, आपके लिए वो समझा दिया, वो लेवल ठीक है। Action of rudder in steering the ship. Part of the steering apparatus of a boat or ship is fastened outside the hull, which is at the stern. It operates on the principle of unequal water pressure, which is as per Bernoulli's principle. So when the rudder is turned so that one side is more exposed to the force of water, the pressure difference will be there, and the water flowing past on the other side, the stern will be thrust away from that side that the rudder is on, and the boat or ship will swerve from the original course जो आपको समझाया। So in small boats, the rudder is operated manually by tiller, which is a handle, या कई बार helm से होता है। In larger, it is turned by hydraulic, steam or electrical machinery. Now, action of rudder in steering the ship. अब हम rudder के area पे आएंगे। The turning action of a rudder is largely dependent on the area of rudder, और area of rudder का भी मैं आपको diagram दिखाऊंगा, which is 1/16 or 1/17 of the length of ship, which is L, into the depth or draft of the ship. And the ratio of depth to width of rudder is known as aspect ratio, which is 2. अब मैं आपको diagram and एक problem से समझाऊंगा कि ये चीज क्या है। अब आपके स्क्रीन पे आ रहा है रडर। Now rudder dimensions अगर ये ले लो, this is the breadth of rudder and this is the depth of rudder। ठीक है, इसको जरा छोटा कर देते। So y is the depth of rudder and this is the breadth of rudder. So aspect ratio is depth of rudder divided by breadth of rudder, which is y by x. So this is twice of x, so it is 2. Now area of rudder को हमने कैसे लिया है? Area of rudder हमने कहा था 1/16 into draft of ship into length of ship. So suppose summer draft आपका 8 मीटर है, लेंथ 100 मीटर है, तो area of rudder क्या होगा? 1/16 into 8, which is summer draft, into 100, which is length of ship, तो आपका 50 स्क्वायर मीटर आ गया। अब मुझे निकालना है what is the dimensions of the rudder और what is the breadth of rudder and depth of rudder, क्योंकि मुझे सिर्फ लेंथ एंड समर ड्राफ्ट मिला और कैसे निकालना है सारा। y into x, एरिया आपको पता है, एरिया इज y into x. We are just taking the area of one side, we are not taking the surface area. Area of rudder is x into y. ये 50 स्क्वायर मीटर हो गया। अब सब्स्टिट्यूट करो y is equal to 2x, तो ये 2x स्क्वायर हो गया, 2x स्क्वायर इज 50, x क्या हो गया, x स्क्वायर हो गया 25, तो x क्या हो गया 5, y क्या है 2x, so it is 10 मीटर। ये आपको समझ आया कि नहीं आया? तो दूसरे एग्जाम्पल पे जाएंगे।
इसमें कोई डाउट आ गया सर ये। है ना? तो इसलिए सम इसमें बनाया है सो दैट यू डोंट कंफ्यूज। सम देने से ना क्लैरिटी हो जाती है चीज की। अब मैंने एक और इस तरह से एक प्रॉब्लम बनाया इसी के ऊपर, वो भी आपको दिखा देते हैं, तो आपको जो थोड़ा बहुत डाउट है वो भी क्लियर हो जाएगा। नाउ क्वेश्चन है, ए लेंथ इज 320 मीटर, समर ड्राफ्ट 20 मीटर, व्हाट आर द डायमेंशंस ऑफ द रडर? आपको लिखा है लेंथ और समर ड्राफ्ट। अब हमको निकालना है एक्स और वाई क्या है। एस्पेक्ट रेशियो आपको 2 दिया हुआ है। एरिया ऑफ रडर क्या हो गया, एक्स इंटू वाई, सो 320 एक्स इंटू वाई एक तरफ हो गया। एरिया ऑफ रडर क्या है, 320 इंटू 20 विच इज समर ड्राफ्ट इंटू 1/16, तो ये 400 मीटर स्क्वायर हो गया। नाउ दिस इज इक्वल टू y into x, 400 meter square. So this will be 2x square is equal to 400. So x square will be 200. X will be under root of 200. So that is 14.14. Y will be twice of x. So that is 28.28. ये आपका दो एग्जाम्पल से आपको समझा दिया कि ये एस्पेक्ट रेशियो क्या है और एरिया ऑफ रडर का प्रॉब्लम कहाँ से सॉल्व करना है। नेक्स्ट पे आते हैं, हाइड्रोडायनेमिक एफिशिएंसी। नोट्स आपको मिल जाएंगे आज। अब रडर क्या है, इट प्रोवाइड्स हाइड्रोडायनेमिक एफिशिएंसी व्हेन प्लेस्ड इन आफ्ट। ये तो मैं आपको बता दिया क्यों। सो देयर इज अनदर रीजन व्हाई रडर्स आर नेवर प्लेस्ड एट द bow. It is to protect the rudder from collision damage, but the primary reason is hydrodynamic efficiency. तो हाइड्रोडायनेमिक एफिशिएंसी तब होगी जब आपका वाटर फ्लो ज्यादा हो। So why rudder is always placed behind a propeller? So propeller does nothing but, कौन सा वाला? लास्ट स्लाइड पर 1 मिनट पढ़ रहे थे। पढ़ लो। ओके सर। Okay. So why is a rudder always placed behind a propeller? The propeller increases the velocity of water that flows out of its slipstream. So the lift generated is proportional to the velocity of water falling. जितनी स्पीड ज्यादा होगी उतना रडर का एक्शन ज्यादा होगा। सो डेड स्लो हेड में कम होगा, स्टॉप शिप में बिल्कुल नहीं होगा। तो आपको पता है मैनूवरिंग के टाइम हम डेड स्लो हेड देते हैं और फिर स्टॉप कर देते हैं, सो दैट पानी का मूवमेंट हो और जहाज फिर अकॉर्डिंगली मूव करेगा। उस टाइम सिर्फ रडर से नहीं चलेगा, उसको आपको प्रोपेलर को थ्रस्ट देना पड़ता है, इसीलिए रडर इज aft of propeller. So the rudder is placed aft of the propeller. The increased velocity of propeller outflow results in greater lift force. So it is only for this reason the rudder is placed aft of propeller. However, if the rudder is placed just forward of propeller, it will have to have same turning effect, but the magnitude will not be same, and your force by your propeller will not affect your rudder. So that will also create a problem. इसलिए you have rudders aft of propeller. Now, so what is the turning action of rudder dependent on? किस किस चीजों में डिपेंडेंट है भाई टर्निंग एक्शन? एक तो कितना हेल्म दिया, आपकी प्रोपेलर कितना मूव कर रहा है, इसका मतलब कि स्पीड कितनी है, करंट कितना है, विंड कंडीशंस क्या है, उन सब के ऊपर शिप का डायमेंशंस कितना है, काफी बड़ा शिप है कि नहीं। सो ऑल थिंग विल डिपेंड ऑन द टर्निंग एक्शन। एस्पेक्ट रेशियो क्या है? इट इज द डेप्थ ऑफ रडर डिवाइडेड बाय विड्थ ऑफ रडर, और y by x. How is the rudder size dependent on length of vessel? As per the formula, 1/16 into L
into draft of ship will give you the rudder size. So if the longer ship is there, you require a bigger rudder. So that's why the rudder size dependent on the length of vessel. Now we have three types of rudders. One is your balanced rudder. अभी दोनों तीनों समझाऊंगा. बैलेंस रडर जैसे ये है, एक आपका एक्सेल है, 20% से ज्यादा एक्सेल के आगे रहता है रडर का सेक्शन और बाकी 75% पीछे रहता है, ये एक्सेल के पीछे. ये होता है बैलेंस रडर. इसमें आपका बेसिकली टॉर्क एक्ट करता है. एक तरफ से फोर्स इनटू डिस्टेंस पानी यहाँ से मूव करता है और दूसरी तरफ से उधर से पानी मूव करता है, तो ये जल्दी टर्न कर जाता है. जैसे आपके रिवॉल्विंग डोर्स होते हैं, बहुत जल्दी खुल जाते हैं. दूसरा टाइप का रडर होता है अनबैलेंस रडर. अनबैलेंस रडर क्या है? एक रडर पोस्ट के ऊपर हैंग कर रहा है, जैसे आपका दरवाजा है. अब दरवाजा हिंज से लगा हुआ है, ये दरवाजे को समझ लो. तो दरवाजे को हिंज पे लगाया हुआ है और हिंज को हम कहते हैं लॉकिंग पिंटल और गजन इसका सेक्शन है. हिंज के पिंस ये वाले, बेरिंग पिंटल और लॉकिंग पिंटल. तो पानी में इसको पूरा मूव करना पड़ेगा पोर्ट या स्टारबोर्ड घुमाने के लिए. उसके लिए बहुत बड़ा रडर चाहिए और ये है इसीलिए अनबैलेंस्ड, क्योंकि उसके लिए आपको ज्यादा फोर्स लगाना पड़ेगा इसको घुमाने के लिए. तो ये छोटे बोट्स में रहता है अनबैलेंस्ड रडर. और एक रडर पोस्ट पे ही रहेगा क्योंकि उसको उस पे हैंग करना है, क्योंकि इसका पिवट पॉइंट यहाँ है. जो टॉर्क पॉइंट है, नॉट पिवट पॉइंट, टॉर्क पॉइंट यहाँ है. टर्निंग एक्शन इधर से होता है, जबकि बैलेंस रडर का टर्निंग एक्शन ये एक्सेल पे होता है. यहाँ आपका कोई रडर पोस्ट नहीं होगा, रडर एक्सेल डायरेक्ट थ्रू पास होगा. ये वाला आपका अनबैलेंस रडर है, क्योंकि यहाँ एक रडर पोस्ट के ऊपर इसको सपोर्ट किया गया है. तो ये वाला अनबैलेंस रडर. अभी मैं आपको सारे फिर से समझाऊंगा, पहले 3 पार्ट बता दूं, फिर आई विल एक्सप्लेन ईच पार्ट ऑफ द रडर. तीसरा टाइप का रडर होता है ये टाइप का, सेमी बैलेंस्ड. सेमी बैलेंस का मतलब है नीचे का सेक्शन जो होगा वो बैलेंस्ड होगा और ऊपर का सेक्शन होगा अनबैलेंस, क्योंकि यहाँ ये कनेक्टेड है बट यहाँ कनेक्टेड नहीं है और नीचे देखो कोई सपोर्ट नहीं है. तो जिनके 2 प्रोपेलर होते हैं उनमें ज्यादातर ये सेमी बैलेंस्ड होता है. तो हम इसके डायग्राम शुरू बताते हैं. इस डायग्राम में थोड़ा सा नीचे इसको खींचना पड़ेगा, थोड़ा सा ये डायग्राम पीपीटी में पूरी तरह नहीं आ रहा था. तो रडर के जो पार्ट्स हैं, पहले हम इससे शुरू करते हैं. रडर के पार्ट्स क्या क्या. चलो अनबैलेंस से शुरू करते हैं. जो ज्यादातर आपको ओरल में पूछते हैं कि व्हाट इज रडर स्टॉक, व्हाट इज रडर ट्रंक, व्हाट इज रडर पोस्ट, पहले उनकी बारीकियां बता दें. रडर पोस्ट इज a post where your unbalanced rudder is hanged or supported by locking pin and bearing pin on the gudgeon. So the rudder post is taking the weight of the rudder. So your turning action is on the rudder post. Now this is a rudder stock which goes to your steering gear. So it takes the messages from steering gear to the rudder and back. So इसका पर्पस है मैसेज भेजना, कौन सा एक्शन करना है और किसके थ्रू जाएगा उसको हम रडर ट्रंक कहते हैं. एक सेक्शन से, हल के अंदर से एक सेक्शन होता है जिसके थ्रू रडर स्टॉक जाता है स्टीयरिंग गियर, सो दैट इज नोन एज रडर ट्रंक. सो रडर पोस्ट, रडर स्टॉक एंड रडर ट्रंक. रडर स्टॉक एंड रडर ट्रंक तो बाकी रडर्स में भी हैं. रडर पोस्ट इज ओनली ऑन अनबैलेंस्ड रडर. In your balanced rudder you have rudder axle, you don't have rudder post, you have rudder axle. Now we'll come to the parts of your rudder. Now the rudder is basically hollow, तो इसके अंदर पानी जा सकता है, कहीं क्रैक हो जाए तो वाटर कैन गो. सो यहाँ there is a drain plug to drain out the water in dry dock. Now it is a fabricated stern rudder, so इसके अंदर stiffenings are vertical and horizontal webs inside the rudder. I'll show you a diagram where it is given. कहाँ दिया हुआ था?
चलो वो बाद में देखते हैं, कहीं कहाँ डायग्राम था, मैं भूल गया, कहीं डायग्राम था जहाँ वो वेब्स बनाए हुए थे। चलो वील डू द पार्ट्स अगेन। अब इसमें वर्टिकल वेब अंदर में, अगर इसको हॉलो समझो तो इसके अंदर लगा होता है ये वर्टिकल वेब, और अंदर में ये हॉरिजॉन्टल वेब लगा होता है। देन देयर इज अ लिफ्टिंग लूप पॉइंट वेयर ड्राई डॉक में उठाने के लिए फ्रॉम दिस यू आर लिफ्टिंग पॉइंट इज लिफ्टिंग लूप, जैसे कार को खींचने के लिए पॉइंट बना होता है, सो लिफ्टिंग लूप ट्यूब इज अ पॉइंट फ्रॉम वेयर यू कैन लिफ्ट द रडर. So this is your rudder stock going to your steering gear. This is the locking pintle. This is the rudder post and bearing pintle. I'll show you one more diagram जिसमें आपको ये diagram तो बनाना है, plus locking pintle और bearing pintle भी बनाना है. वो notes में है लेकिन PPT में नहीं है. I सर just ये open the notes. गजन ये जो बताया था आपने, ये क्या था? ये गजन बेसिकली रडर पोस्ट का एक सेक्शन है, रडर पोस्ट का ही सेक्शन है जो प्रोजेक्टेड है और इसमें पिन लगते हैं तब ये रडर लगेगा. अब इसको आपको दिखाते हैं. ये सर ये जो वाला लिफ्टिंग ट्यूब सर, का ये ये- हॉलो होता है पूरा? ये हॉलो होता है, ये हॉलो है. अब ये देखो ना, नहीं, ये सर। पिंक वाला बना हुआ है, ये वाला, ये स्टर्न फ्रेम है. अब स्टर्न फ्रेम में सोल सर ये रडर पीस पोस्ट नहीं भी होता स्टर्न फ्रेम का पार्ट है ना? रडर पोस्ट स्टर्न फ्रेम का पार्ट है, तो ये अनबैलेंस रडर में है ये वाला. अब इसमें ही अगर आप देखो, ये सेक्शन लगाया हुआ ना, इसको गजन कहते हैं. ये सेक्शन को गजन कहते हैं. इसमें पिन लगा दिया, तो ये नीचे का पिन है, ये ऊपर का पिन है. मैं आपको अब पिन्स दिखाता हूँ क्योंकि आपको वो बेरिंग पिंटल और ये भी डायग्राम बनाने हैं. तो मैं आपको, क्योंकि मैंने पीपीटी में डाला नहीं है, भूल गया, लेकिन नोट्स में है, तो नोट्स में आपको नोट्स का भी खोल कर रहा हूँ, बाद में पीपीटी चेंज कर दूंगा. अभी तो आपको ये दिखा दूँ, देन आई विल चेंज द पीपीटी. पहले हम उसको दिखाते हैं आपको अनबैलेंस रडर में कैसे. हाँ मैं वही देख रहा, डायग्राम कहाँ, वो डायग्राम यहाँ है, पीपीटी में नहीं है, इसलिए मैं ढूंढ गलत रहा था, पीपीटी में है ही नहीं वो. अब ये देखो ऊपर से दिखाया हुआ है टॉप व्यू, तो ये अगर आप देखो टेपर कर रहा है और उसके अंदर ये जो स्ट्रक्चर लगे हैं, ये वर्टिकल स्टिफनर्स और वर्टिकल वेब्स एंड हॉरिजॉन्टल वेब्स लगे होते हैं इसके अंदर. अब इसका ये जो सेक्शन है दैट इज योर गजन, ये रडर पोस्ट का एक सेक्शन है जहां ये पिन लगता है. तो ये वाले डायग्राम आपको बनाने हैं, मैं आपको नोट्स में भेज रहा हूँ. देयर इज अ लॉकिंग पिंटल हियर जो इसमें लगता है, तो ये इसका गजन है. ये वाला गजन है, दिस इज अ गजन, ये तो रडर का पार्ट है. दिस इज अ गजन विच इज ऑफ स्टर्न, योर स्टर्न पोस्ट, रडर पोस्ट स्टर्न फ्रेम का पार्ट है, और ये सेक्शन भी स्टर्न फ्रेम का पार्ट है. तो यहाँ ये रडर का पार्ट है, ये स्टर्न फ्रेम से कनेक्ट हो रहा है, यहाँ हार्ड डिस्क है, तो द पिन गोज हियर नीचे में, और ये ऊपर में लगा रहता है. सिमिलरली जो ऊपर वाला सेक्शन है दैट इज योर लॉकिंग पिंटल, और नीचे वाले को बेरिंग पिंटल कहते हैं. बेरिंग पिंटल इज टेकिंग द एंटायर लोड ऑफ द रडर. ये कम लोड लेता है, नीचे वाला ज्यादा लोड लेता है, इसलिए देयर इज अ हार्ड स्टील डिस्क टू टेक द लोड. ऊपर वाला जो है लॉकिंग पिंटल विल हैव लिग्नम वाइटे एंड ब्रास बुश यहाँ अटैच्ड होता है. तो व्हेन यू मेक अ डायग्राम यू हैव टू मेक दिस डायग्राम आल्सो अलोंग विद द अनबैलेंस्ड रडर. ये 5 नंबर का डायग्राम, ये वाला 5 नंबर का है. अगर आपने ये नहीं बनाया तो आपको 20 में से ही दूंगा. अब आपके चॉइस है कि आप ये डायग्राम बनाओ या ये डायग्राम. सर ये लिग्नम विटाए और ब्रास बुश ये क्या है सर? लिग्नम वाइटे इसका मटेरियल है बेटा, मटेरियल है. ब्रास बुश नीचे लग रहा है, लिग्नम वाइटे की लाइनिंग होती है जिसके अंदर ये जाता है. लिग्नम वाइटे आपके स्टर्न पोस्ट में भी, ये आपका स्टर्न ट्यूब में भी आएगा. लिग्नम वाइटे मटेरियल है लुब्रिकेशन देने के लिए. ओके ठीक है. ब्रास बुश होता है बेसिकली, बुश लगा हुआ है सो दैट अपनी पोजीशन में होल्ड करे. जैसे वॉशर्स होते हैं, वॉशर इज बुश,
तो ब्रास का वॉशर है, उसको ब्रास बुश कहते हैं। लिग्नम वाइटे मटेरियल है जो लुब्रिकेट रखेगा ताकि वो फंस ना जाए, क्योंकि सी वाटर में डलते डलते ना ये फंस जाएगा। अब ब्रास क्यों देते हैं कि वो रस्ट ना लगे, नहीं तो ब्रास नहीं देंगे, स्टील डालेंगे तो वहाँ फंस जाएगा, रस्ट हो जाएगा और ये रडर मूव ही नहीं करेगा। So lignum vitae and brass bush, lignum vitae will provide the lubrication, brass bush will not corrode. ठीक है, so that is the reason ये दोनों दिए होते हैं। तो आपको ये डायग्राम बनाना है, this diagram और this diagram. If you make this diagram, then you have to add your other whatever labels in this also. इसमें आपको गजन और वो सारा मेंशन करना पड़ेगा। This is your गजन, ये आपका सर ये गजन है। नीचे कास्ट सोल पीस है उससे अटैच है क्या? कास्ट सोल पीस इसमें इतना, ये कास्ट सोल पीस पूरा नहीं है। कास्ट सोल पीस आपका जो आएगा वो यहाँ आएगा इस वाले में। इसमें डायग्राम नहीं बना हुआ है लेकिन आपको पीपीटी में दिखाऊंगा, वो यहाँ कास्ट सोल पीस ज्यादा आता है। ये वाला सेक्शन जो आया ना, ये कास्ट सोल पीस है, ये एक्सटेंडेड होता है। जबकि अनबैलेंस में एंटायर इज नॉट कास्ट सोल पीस, छोटा सेक्शन है, तो ये छोटा सेक्शन है। बट बैलेंस्ड में ये आगे तक जाता है, प्रोलॉन्ग्ड होता है, वो कास्ट सोल पीस है। ये समझ आ गया? सर ये नीचे का जो ब्लू लाइन है पूरा कनेक्ट है क्या प्रोपेलर के पीछे तक? ये हाँ, ये वाला जो ये स्टर्न ट्यूब जाएगा ना, यहाँ से प्रोपेलर शाफ्ट है ये। नहीं सर, प्रोपेलर नीचे शाफ्ट नीचे ये हाँ ये सर, वाला ये लाइन, हाँ इस ये सबसे यहाँ नीचे कील से कनेक्ट, लाइन। ये हाँ ये कील से कनेक्ट हो गया, खींच दिया। डायग्राम थोड़ा गलत है, तो यहीं तक आएगा। अगर आपका ये आफ्ट कोलिजन बल्कहेड है तो यहीं आएगा ना, यहाँ आपका कील अटैच होगा। यहाँ तो उनको डिमार्केशन करना था, वो नहीं बनाया है, तो यहाँ कील अटैच होगा, यहीं कॉफिन प्लेट आएगा। ठीक है, यहाँ कॉफिन प्लेट आएगा, बट इन्होंने लंबा खींच दिया है थोड़ा सा, यहीं आएगा। इट विल नॉट बी कोलिजन बल्कहेड के अंदर ही रहेगा ना, ये इस तरफ रहेगा। सर ये तो ये आपका बियरिंग पिंटल और लॉकिंग पिंटल में सर ये डिफरेंस क्या है, समझ नहीं आया। बता देता हूँ। बेरिंग पिंटल का मतलब है ये पूरा रडर का लोड ले रहा है, ये पूरा रडर है उसका लोड ये ले रहा है, ये नहीं ले रहा है इतना। ये इसको लॉक कर रहा है, नहीं तो ये गिर जाएगा ना। अगर ये इधर कुछ नहीं लगाएंगे तो यहीं लगाएंगे तो ये तो गिर जाएगा। तो इसको लॉक इन कर रहा है सो दैट मूव करे ना, और ये पूरा लोड ले रहा है, इसलिए इसको बेरिंग पिंटल कह रहे हैं, इसको लॉकिंग पिंटल कह रहे हैं। तो इसके डिजाइन अलग है, इसमें नीचे हार्ड डिस्क दिया हुआ है सो दैट इसका वेट ले। और क्वेश्चन, और क्वेश्चन पूछो। ये क्लियर है? फिर विल कम टू बैलेंस रडर। सर ये रडार तो स्टॉक बैलेंस, का आप यूज बता रहे थे ना वो। हाँ रडर स्टॉक ये बता रहा था, ये रडर स्टॉक यहाँ से जा रहा है और ये जो एरिया जिसके थ्रू जा रहा है दैट इज रडर ट्रंक। तो ये रडर स्टॉक ऊपर जाता है एंड इट गोज टू द स्टीयरिंग गियर, तो यहाँ स्टीयरिंग गियर पे जा रहा है। सो जिसके थ्रू जा रहा है दैट इज रडर ट्रंक। ये रडर पोस्ट है, ये रडर स्टॉक है, ये बेरिंग पाम है, दिस इज नोन एज बेरिंग पाम। ये आप डायग्राम सर ये देखोगे। एक्सेसिबल होता है क्या रडार? रडर ट्रंक बेसिकली जहाज से ऐसे नहीं देख सकते, ड्राई डॉक में ही देखते हैं, ऐसे नहीं जाके कोई देखता है रडर ट्रंक कैसा है। वाटर टाइट एरिया होता है, नहीं तो रडर ट्रंक आपको पढ़ाऊंगा। रडर ट्रंक वाटर टाइट एरिया होता है, नहीं तो पानी आ जाएगा तो आपके इंजन में फ्लड हो जाएगा, तो वाटर टाइट एरिया होता है। ठीक है, सो नाउ वी कम टू योर बैलेंस रडर। अब बैलेंस रडर में क्या है कि ये रडर पोस्ट नहीं होता, ये रडर एक्सल है विच इज अ टॉर्क पॉइंट जहां घूमेगा। सो दिस सेक्शन जो आगे का सेक्शन है अबाउट 25% अहेड ऑफ दिस रडर एक्सल, 75% इधर है। सो दैट अगर ये नहीं होता तो वो सीधा ही आपका अनबैलेंस रडर हो जाता। अब यहाँ बैलेंस क्यों है? क्योंकि रिवॉल्विंग डोर जैसे जल्दी घूमता है, इस सेक्शन पे अगर आपका पानी का फोर्स लगा तो जो फोर्स इनटू डिस्टेंस है वो आपको मोमेंट देगा, टर्निंग मोमेंट। सिमिलरली अगर यहाँ पानी फोर्स कर रहा है तो फोर्स इनटू डिस्टेंस देगा, तो कम फोर्स से जल्दी घूम जाएगा। जबकि अनबैलेंस रडर में ज्यादा फोर्स लगेगा घुमाने के लिए, क्योंकि उसका जो
टर्निंग पॉइंट एक ही है ये। तो आपका अगर इधर फोर्स लगेगा तो आपको पूरा ये डिस्टेंस मिला, तो आपके पास एक ही मूवमेंट है, उसमें दो है। तो वो बेसिकली आपका इसको कहते हैं टॉर्क के, जो इसको क्या कहते हैं, मैं भूल गया वर्ड, जो दो एक साथ काम करते हैं ऑपोजिट डायरेक्शंस में फोर्स, उसको क्या कहते हैं, कपलिंग। हाँ, कपल कहते हैं। तो व्हेन यू कपल, ये जब 12th में पढ़ा था, 11th में पढ़ा था, कपल जब फॉर्म करता है तो ऑपोजिट डायरेक्शन में करेगा तो जल्दी घूम जाएगा। बट इसमें एक ही फोर्स इनटू डिस्टेंस है, तो फोर्स इनटू डिस्टेंस है तो फोर्स ज्यादा लगेगा, क्योंकि वो कपल नहीं फॉर्म कर रहा, आपका एक ही डायरेक्शन से फोर्स लग रहा है, तो इसमें ज्यादा फोर्स लगेगा, स्टीयरिंग गियर आपका बड़ा है। इसमें एक फोर्स इधर लगा, दूसरी फोर्स उल्टी डायरेक्शन से लगी, तो कपल फॉर्म कर लिया तो जल्दी घूम जाएगा। चीजें इसमें भी वही चीज है, इसमें कास्ट होल पीस आ जाएगा, ट्रेन प्लग आ गया, हॉरिजॉन्टल वेब, वर्टिकल वेब, लिफ्टिंग ट्यूब, बोल्टेड पाम, जहां रडर स्टॉक लगा है उसमें भी बोल्टेड पाम होगा, अपर बेरिंग है, लोअर बेरिंग है। इसके दोनों बेरिंग ये वाले हैं, ऊपर का बेरिंग ये है, नीचे का बेरिंग ये है। नीचे का बेरिंग में लोड ज्यादा आएगा, क्योंकि इसी के ऊपर तो लोड ले रहा है, लेकिन अंदर एक्सेल लगा हुआ है, सो इधर ही घूमेगा, इस वर्टिकल पोजीशन पे, एक्सिस पे घूमेगा। इट इज गोइंग टू टर्न इन दिस एक्शन। सो द अपर बेरिंग इज दिस वन। देयर इज अगेन अ ब्रास बुश। बुश मींस, इसको कहते हैं ट्यूब टाइप। बेसिकली अगर एक बुश का मतलब होता है एक ट्यूब, तो ट्यूब के थ्रू ये पास कर रहा है। सो द ट्यूब विल क्रिएट अ non corrosive, non corrosion proof material, so that seawater will not corrode it, plus it will be lubricated so that it can move. Similarly here, अगर ये lubricate होगा तो काम हो जाएगा फिर आप हेल्प देते रहो, कोई मिलेगा ही नहीं। इसलिए यहाँ जो बुश का मतलब है, ट्यूब सी होती है ब्रास की, जिसके थ्रू ये पास करेगा सेक्शन पे। तीसरा वाला जो है ये वाला है। अब मैं वापस आ जा रहा हूँ आपके पीपीटी पे, क्योंकि इससे आगे इसमें है नहीं डायग्राम, पीपीटी पे ही आते हैं। लेकिन आपको दोनों बेरिंग्स वो बनाने पड़ेंगे, ये ध्यान रखना। जल्दबाजी में करोगे और नहीं बनाओगे तो फिर आपके नंबर जाएंगे। तीसरा वाला ये वाला है। सो हियर यू हैव रडर स्टॉक, ये जा रहा है, दिस इज द स्टर्न फ्रेम, दिस इज द लॉकिंग पिंटल एंड दिस इज द बेरिंग पिंटल, एंड ये क्लियरेंस है इसमें। सो जो नीचे वाला सेक्शन है दैट इज बैलेंस, और ऊपर वाला सेक्शन इज अनबैलेंस्ड। सो इसका इफेक्ट बीच का होता है बिटवीन बैलेंस रडर एंड अनबैलेंस रडर। अब आपके कुछ स्पेशल रडर भी आते हैं, जैसे ये वाले हैं। These are spade rudders which provide a flap here, और इसका इफेक्ट जो होता है ऑलमोस्ट फ्लैप से 70 to 80 डिग्रीज टर्न होता है। नॉर्मली रडर टर्न होता है 35 मैक्सिमम, बट ये स्पेड रडर कैन टर्न बाय अबाउट 70 डिग्रीज टू 80 डिग्री। आपको वीडियो बाद में दिखाऊंगा, पहले थोड़ा आज पढ़ा दें, देन आपको वीडियो भी दिखाएंगे। सो ये स्पेड रडर है, स्पेड के जैसे। इट इज अ स्पेशल रडर एज कंपेयर टू योर नॉर्मल रडर। तो तीन आपके बेसिक रडर हैं, एंड दिस इज अ स्पेशल रडर। अब मैं आपको जरा ये कैरियर पिंटल है, इसका जरा आपको रडर के जो है, क्योंकि इस पीपीटी में इज मेड एज पर डीटीएस, तो इसमें नोट्स इतने नहीं है रडर के बारे में, तो मैं आपको पीपीटी से नहीं अपने थ्योरी वाले से पढ़ा रहा हूँ, क्योंकि वही मैं आपको भेजूंगा। सर ये स्पेशल रडर क्या है, मतलब इसमें अब मैं आपको स्पेशल दिखा, ये सारा दिखाऊंगा, स्पेशल रडर का भी वीडियो दिखा दूंगा क्या है। पहले आपको, क्योंकि रडर के बारे में पीपीटी में नहीं दिया गया है, पीपीटी डीटीएस के हिसाब से बनाया हुआ, और डीटीएस के हिसाब में दिया नहीं है, क्वेश्चन आ जाते हैं, तो इसलिए उसमें दिया नहीं है।
तो मैं अभी आपको टाइप्स ऑफ रडर पढ़ा रहा हूँ एज पर थ्योरी माय नोट्स। मैं आपको टाइप्स ऑफ रडर इसमें करवा रहा हूँ। सो रडर आपका जो है एक कास्ट टाइप होता है जो फाउंड्री मतलब भट्टी में बनता है। सो दिस इज डायरेक्टली पुट इन मोल्ड्स और मोल्ड के हिसाब से छोटी बोर्ड्स के हिसाब से बनता है। एंड दूसरा वाला होता है प्री फैब्रिकेटेड विच इज मेड इन एनी यार्ड, विच विल मेड इन यार्ड डायरेक्टली। उसके पार्ट्स आएंगे और वहीं सेक्शन को वेल्ड किया जाएगा, हॉरिजॉन्टल एंड वर्टिकल वेब्स जो आपको दिखाए थे। सो दिस इज मोर पॉपुलर इन मॉडर्न शिप्स। नाउ योर एफिशिएंट रडर, क्या एफिशिएंट रडर होता है? एफिशिएंट रडर इज अ रडर विच प्रोवाइड्स हाई मैन्यूवरेबिलिटी, फास्टर टर्निंग रिस्पॉन्स, इल सेव इन फ्यूल, क्योंकि आप टर्निंग सर्कल कम हो जाता है तो आप फ्यूल सेव कर रहे हो। स्ट्रेसेस आपके स्टर्न एरिया में रिड्यूस करता है एफिशिएंट रडर, क्योंकि स्ट्रेसेस बिल्डअप हो जाएंगे तो अगेन मूवमेंट विल बी मुश्किल। एंड स्मॉलर टर्निंग गियर रिक्वायर्ड। नाउ योर अनबैलेंस रडर में स्ट्रेसेस बहुत बढ़ जाते हैं एट टर्निंग पॉइंट। आपके फ्यूल सेविंग नहीं होता बिकॉज योर turning circle is more, maneuverability is less in unbalanced rudder, your response is slow, and your steering gear required is large. But in unbalanced rudder, your maneuverability is good, your response is good, you save in fuel, your stresses are less, and your steering gear is also smaller. Or the third type of rudder इन दोनों के बीच का है। Third type of rudder is in between balanced and unbalanced, semi-balanced rudder. सर ये यहीं स्क्रीन इनबैलेंस्ड वाले पे ही स्टक है, आगे मूव नहीं कर रही। बाकियों में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? नहीं आ रहा सर, नहीं आ रहा। नहीं सर, नहीं आ रहा सर। कहाँ अटक गया है? सर अनबैलेंस वाले पे अटका हुआ है सर। हाँ तो अभी मैंने मूव ही किधर किया है? अभी तो मूव करूंगा, अनबैलेंस पे ही हूँ ना मैं। अभी तो मैंने मूव कहाँ किया है? 3 टाइप्स ऑफ रडर। अनबैलेंस रडर जो दिखा रहा है एंटायर टर्निंग एरियाज आफ्टर ऑफ टर्निंग एक्सिस। मैं यहीं तक तो हूँ, इसी पेज पे तो हूँ, मैंने आगे किया ही नहीं है, अब आगे करूंगा। सर अब ये जो दिख रहा कास्ट है? करके बनाते हैं मोल्ड करके, वो होलो नहीं होगा ना? अब वो छोटी बोट्स का होता है ना, तो छोटी बोट्स को हॉलो नहीं करने की जरूरत नहीं, ज्यादा वेट नहीं होता ना। वो तो बड़े शिप्स के लिए तो फिर फैब्रिकेटेड बनाते हैं ना, बिकॉज वो हॉलो होता है। फिर छोटी जो बोट्स के हॉलो लिए होता है तो तो सर इसके अंदर पानी भी जाता है क्या फिर रडर के अंदर? हाँ जा सकता है, तो अब्जॉर्बेंट मटेरियल होता है इसके अंदर, फिर तभी तो ड्रेन लिखाया हुआ है। सर ड्रेन अपने को क्यों लगी? तो सर बड़ी अब्जॉर्बेंट शिप्स में तो मटेरियल सब का में फायदा ही क्या है फैब्रिकेटेड सर? होगा वो ना? जब पानी कंटिन्यूअसली जा ही रहा है, क्योंकि तो हमेशा इमर्स रहता है तो सर पानी तो जाता ही रहेगा। नहीं नहीं, ऐसा नहीं है, कहीं क्रैक हो गया तब जाएगा ना, वो बाहर से तो बंद होगा ना, ऐसा थोड़ा खुला होगा पानी तो जाता रहेगा, फिर तो फायदा ही क्या है? फिर क्या मूव करेगा? अगर पानी जा रहा है हमेशा ही तो फिर मूवमेंट क्या करेगा? नहीं नहीं वो सर, बंद रहता है। तभी पूछा सर, मतलब हम लोग को पता नहीं ना, तो नहीं सर नहीं उसमें नहीं, ड्रेन बाहर प्लग था तो से मुझे लगा बंद जाता रहता होगा है। ड्राई डॉक में। नहीं नहीं, वो जाएगा तब, अगर कोई क्रैक हो गया तब जा सकता है, तभी ड्रेन प्लग लगा, और कुछ नहीं। अगर क्रैक हो गया तब जाएगा ना, वैसे थोड़ा जाएगा। ओके सर। अनबैलेंस रडर में एंटायर टर्निंग एरियाज आफ्टर ऑफ योर टर्निंग एक्सिस जो बताया था, इट इज इनएफिशिएंट रडर एंड इट इज फाउंड इन स्मॉल शिप्स, टग्स, लॉन्चेस। लॉन्चेस मतलब जो आपके एलिफेंटा केव्स जाती हैं वो वाली, एंड लाइफ बोट, इनमें ही अनबैलेंस्ड रडर होगा। सेमी बैलेंस रडर जो है, अब आ रहा है ना स्क्रीन पे? सेमी बैलेंस के नहीं आ रहा है? सबके स्क्रीन पे आ रहा है कि नहीं? आ रहा है। आ रहा है, ठीक, ओके। सेमी बैलेंस रडर में स्मॉल सेक्शन विच इज लेस देन 20% इज अहेड ऑफ फॉरवर्ड ऑफ टर्निंग एक्सिस, जो नीचे का सेक्शन है। बाकी एरिया ऑफ रहता है जो आपको दिखाया था। सो इट इज फाउंड इन लार्जर शिप्स विच हैव गॉट 2 प्रोपेलर्स और ट्विन स्क्रू। अब आता है बैलेंस रडर। सर मेरे में तो सर सेमी बैलेंस बैलेंस नहीं आ रहा। अरे क्या हो गया? सर सेमी हमारा बैलेंस सेमी सर बैलेंस नहीं में आ अटक गया है? हाँ सर वो स्टक हो गई तो स्क्रीन। सेमी, बेटा बैलेंस रडर आ रहा है तो सेमी बैलेंस कैसे आएगा? नहीं सर, मतलब सेमी बैलेंस ही दिखा रहा है। हाँ तो तुम ऐसा करो, एमएसटी से बाहर निकलो फिर आओ। एमएसटी अटक गया तुम्हारा, अटक जाता है कई बार एमएसटी।
MST को लॉग ऑफ करो, वापस लॉग इन करो, फिर आओ फिर मैं शुरू करता हूँ बैलेंस का। घर के बाहर ही ना चला जाए सर ये। चलो मैं पढ़ा देता हूँ। बैलेंस रडर बेसिकली क्या है, योर टर्निंग एक्सिस इज पोजीशन सो दैट आगे इज मोर देन 20%, बाकी 75% है, इट इज मोर पॉपुलर, so it's about 20 to 30% ahead of your turning axis. Shape of rudder is important क्योंकि एरिया ऑफ रडर आपने कैलकुलेशन करके बता दिया था, नॉर्मली 2% ऑफ योर लेंथ ऑफ शिप एंड डिजाइन ड्राफ्ट, वो अप्रोक्सीमेटली आप निकाल के कर सकते हो। द वर्टिकल डायमेंशन ऑफ रडर इज restricted ड्यू टू एरिया कंस्ट्रेंट and therefore the fore and aft dimensions are increased. Again, due to increased dimension, the torque necessary to turn this rudder is overcome by lifting balanced or unbalanced semi-balanced rudders. So rudder has about 1/3 of the area forward of turning axis, depending किसी में 25% है, किसी में 30% है, किसी में 33% है. An ideal rudder is जब आपका center of pressure and turning axis coincide करता है हर एक हेल्म की डिग्री पर. अगर वो coincide नहीं करेगा तो आपके रिस्पॉन्स स्लो होंगे एंड एक्शन पूरा नहीं होगा. लेकिन अगर आपका सेंटर ऑफ प्रेशर एंड टर्निंग एक्सिस कोइंसाइड करेगा ऑल हेल्म पे, सो दैट इज द आइडियल रडर. सो दैट इज व्हाई योर डिजाइन शेप्स शुड बी सच, सेंटर ऑफ प्रेशर एंड टर्निंग एक्सिस शुड कोइंसाइड. So unbalanced rudder consists of number of pintles and gudgeons. The top pintle being locking pintle which prevents vertical movement, and the bottom pintle and gudgeon will take the weight of the rudder जो आपको बताया था. अगली बार मैं आपको स्पेशल रडर की वीडियो दिखाऊंगा टू एक्सप्लेन वो स्पेशल रडर कैसे काम करता है. वो अगली बार दिखाऊंगा, 5 मिनट में वो वीडियो तो दिखा नहीं सकता. तो स्पेशल रडर अब आपको, हाँ बोलो सर वो एक बार सेमी बैलेंस दिखा दीजिए सर, थ्योरी. अच्छा, ये आपको थ्योरी भेजने वाला बेटा, जैसे आई एम गोइंग टू सेंड यू. भेज दिए सर ओके आपने सर. नहीं अभी भेजूंगा आपको, अभी क्लास हो जाए तब भेजूंगा ना, तो आपको ये मिल जाएगा. अपने इसके घबराने की जरूरत इधर काफी सारे तो ठीक है सर, आप आपको ये भेज बचा दीजिएगा, है ना. कोई दिक्कत नहीं सर, भेज दीजिएगा सर क्लास के बाद हाँ आप. हाँ, अभी एक और क्लास है उसके बाद मैं भेज दूंगा. अभी इसके क्लास के बाद एक और क्लास है उसके बाद भेज दूंगा. अब आता है ये सर ये स्पेशल रडर. हाँ बोलो. तो स्पेशल रडर अगली बार करते हैं. 4 मिनट बचे हैं, अब आप पूछ सर लो. वो चलो वो क्वेश्चन. लास्ट सर टाइम हैंग हो रहा है. स्टर्न फ्रेम पढ़ाया था ना सर. हाँ सर स्टर्न फ्रेम मतलब वो नीचे रडर वाला एरिया होता है या वो पूरा ऊपर से स्टार्ट होता है? तो मतलब जो टर्न आपने फ्रेम बताया ना में ट्रांसफर. जो टर्न फ्रेम बताता हूँ क्या है. चलो मैं आपको फिर से, स्टर्न फ्रेम में कंफ्यूजन हो गई तुम्हारी, चलो डायग्राम से क्योंकि सर वो समझा दो देता हूँ डायग्राम फिर. दिखाए थे आपने. वो कलर वाले में तो ऊपर वाले को भी स्टर्न फ्रेम बोला हुआ था, जो स्टीयरिंग फ्लैट वाला बैक पार्ट होता है ना. नहीं नहीं, वो नहीं है, वो बेसिकली आफ्ट एंड स्ट्रक्चर है. मैंने कहा था स्टर्न फ्रेम आपको अभी बना के दिखा देता हूँ, चलो घबराओ ही नहीं. 2 मिनट पड़े, अभी आपको बना के दिखा देता हूँ. ये जो शेप बन रही है, ये स्टर्न फ्रेम है. तो यहाँ आपका प्रोपेलर शाफ्ट लगेगा, यहाँ प्रोपेलर शाफ्ट लगता है. यहाँ आपका प्रोपेलर लगेगा, यह पॉइंट है. यहाँ आपका रडर कनेक्ट होगा. सपोज ये रडर,
तो ये बैलेंस रडर का है। तो ये कास्ट सोल पीस ये वाला है। तो ये वाला स्टर्न फ्रेम है, ठीक है, ये स्टर्न फ्रेम है और यहाँ आपकी लगेगी कील ऐसे, ये कील लग गई। अब हो गया क्लियर कि नहीं? इसमें कोई डाउट है क्या? हाँ जी सर, मतलब ये पूरा नहीं है, ये रडर स्टॉक से लेके कास्टोल तक है मतलब। आपका जो स्टर्न फ्रेम है वो ये है, कहाँ गया यार, इसका पूरा कलर होता है ये, हाँ ये स्टर्न फ्रेम, कहाँ गया, पूरा ही कलर हो गया है। इसको बैक कैसे करें? बैक नहीं हो रही क्या? कंट्रोल जेड कर दिया कंट्रोल सर। जेड कंट्रोल क्या? कंट्रोल जे, कंट्रोल जी। जेड, कंट्रोल प्लस जेड होगा, हाँ। तो ये बेसिकली जो है ये आपकी ये कहीं जुड़ गया है, कहीं से गड़बड़ हो रही है, तो ये कैसे कलर आ गया बीच में सारा? ये देखिए सर, लीक कोई है आपके पॉइंट, यहाँ पे सर। कहीं लीक होगा ना, यहाँ लीक होगा, कहीं लीक होगा, नहीं उसके सर, कारण ऊपर है, देखिए रडर स्टॉक जहाँ से आ रहा है ना, वहां पे लीक है हल्की सी। यहाँ। रडर स्टॉक सर, रडर स्टॉक जहाँ पे आ रहा है ना ऊपर, देखिए, हाँ ये है। अच्छा यहाँ है, अच्छा यहाँ, चलो फिर अभी कलर कर देते हैं ना, ये कलर करते हैं, फिर ये फिर से ट्राई करते हैं। हाँ अब ये स्टर्न फ्रेम है, ठीक है, ये स्टर्न फ्रेम है, ये स्टर्न फ्रेम है और ये आपका प्रोपेलर आ गया, ये तो लीकेज है। कंट्रोल जेड, कंट्रोल प्लस जेड है ना, हाँ सर, वो जैसे कर रहा है। कंट्रोल जेड, ठीक है। तो ये वाला है, तो थोड़ा थोड़ा तुमसे सीखेंगे अभी। ये डाउनलोड पेंट वाला नया वाला वर्जन किया ना, इस पे पता नहीं लग रहा है। पहले वाले में आता था एक सिग्नल, इसमें आ ही नहीं रहा है, नए वाले में नहीं आता। चलो फिर अगली क्लास करते हैं, ठीक है, अगली क्लास कंटिन्यू करेंगे। ओके सर। ओके ओके सर, थैंक यू सर, बाय सर। राइट, क्या पेंट वगैरह बोला सर आपने? क्या खोला? इसको जो पेंट करा इसको क्या बोला? MS पेंट है, अरे नहीं MS सर, पेंट मैं है कह ये। रहा हूँ जो इसको पेंट करा है इसको क्या बोला? जिसको पेंट पर्पल। किया ये बताओ, अच्छा बताओ, अब ये पेंट किया, तुम बताओ क्या है? चलो ये सारा रामायण खत्म हो गया, राम क्या है पूछता है, क्या है भाई बताओ, चलो क्या है ये बताओ, क्या है इसको? पिछली क्लास में पढ़ा था, क्या है ये? तेरी चाय चली जाएगी फिर। नीला वाला क्या है? स्टर्न फ्रेम। क्या नहीं समझ आया? समझ नहीं आया क्या? टाइप कर देते हैं तब आ समझ गया। आएगा। यार तुम लोग यार, खत्म हो जाता है रामायण, फिर पूछते हैं राम कौन? ये ले, स्टर्न प्लेट लिख दिया, स्टर्न फ्रेम है, स्टर्न फ्रेम है, ठीक है। चलो मिटा, इसको मिटा रहा हूं मैं, फोटो लेना ले लो, मैं मिटा रहा हूं। चल मिटाते हैं। ले ली सर, ले ली। ले ली, चल ठीक है, ओके बाय।